Good morning, students. Today we will study our student advisor book of mathematics class 6. So in our previous video we have completed 8 questions of chapter practice exercise 2.1, and in the previous video we have learned the number line and addition on the number line, subtraction and multiplication, etc. So in this video we will start with the 9th question and try to complete this exercise, and I will show you the previous work that what we did in the last video. Then we did the practice exercise 2.1. We did first question, second question with A and B subparts, third question successor and procedure, and fourth question with 3 consecutive successor, and then fifth question with smallest whole number and smallest natural number. This question I gave you in the last test which you have done. This, what is the smallest whole number and smallest natural number? You did it wrong. I find that one student did it wrong. So please consider it that the smallest whole number is 0 and the smallest natural number is 1. And then we did when we did the 6th question, which is 1 consecutive success, second 2 consecutive successor we have to find, and 7th question was write the procedure of 10,000. Then we subtracted given number minus 1, and then in the 8th question we had to find that how many whole numbers are there between 0 to 575, and I started with the format and explained you the question number 8. Then we will start with the question number 9 in this video, and the question number 9 we have to read that find the sum and difference of successor and procedure of 42,851. So what is the question say? What would the question want to say? That it want to say that we have to find the successor of 42,851, and then we have to find the procedure of 42,851. Then find the sum and difference, means we have to find the sum of the successor and procedure, and the difference means we have to subtract procedure from the successor. So we will start the question now. It is the 8th question. It is the 9th question, so we will write the 9th question. Each student have to write the questions in their notebook. I am not writing the questions, but you have to do this. Firstly, अपन को क्या करना है, सक्सेसर और प्रोसीजर. अपन को क्या करना है इसमें, एक तो सम फाइंड करना है, मतलब सम मतलब ऐड करना है सक्सेसर और प्रोसीजर को, एंड एक सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले तो अपन सक्सेसर और प्रोसीजर फाइंड करेंगे तो ही तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दैट ऑल इज पॉसिबल. बट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द 42,851 सक्सेसर एंड प्रोसीजर. देन वी लेट 42,851. Then we have to find successor and procedure. Its successor is, I hope that you all remembered the spellings of successor and procedure as well, because I said you that it is compulsory to learn the spellings of successor and procedure first, because it is the terminology of mathematics. Successor equal to given number plus 1, as we know that. It's just a formula which we have written with a superstar. We made star with it. When we started the chapter whole numbers, we made the 2 stars and write the formulas of successor of a number and procedure of a number, because it is the main important formulas of the chapter whole numbers. 42,851. Then successor is given number plus 1. Then given number here is 42,851. Given number is nothing but it is the number which we have find in the question. The number is written in question. ठीक है, तो वही उठा के डालना है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो अपन को उठा के यहाँ डाल देना है. 42,851 plus 1. Then when we add them, 1125842 means the successor of 42,851 is 42,852. Then if we want to know the procedure, it will become given number minus 1. Same star property which have done in the when we initiated the chapter. What is the given number? Same given number is 42,851 minus 1. Then 1 minus 1 is 0 and remaining same. 42,852 and 42,850. Then what we will do now?
we have asked to do sum and difference, then we first find the addition of them. पहले हम क्या करेंगे, इसकी जोड़ करेंगे, इसको ऐड करेंगे दोनों को, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि सम करना है और डिफरेंस फाइंड करना है. सम के लिए एडिशन करेंगे, एडिशन गलत लिख दिया, सम लिखना था, सम करना है ना, क्वेश्चन में सम लिखा हुआ है तो अपन को भी सम लिखना है. सम करना है किसका और किसका, सक्सेसर और प्रीसीजर का. व्हाट इज सक्सेसर, व्हाट इज प्रीसीजर, वी हैव रिटन, एंड व्हेन वी ऐड देम 2 + 0 2, 5 + 0 10, 8 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 4 4 8. Is it right? Is it right? 2 5 5 10, 8 8 16, 17, 2 2 4 5 8. सही है, ठीक है, it is correct. And now we will find the difference. Difference is what? We will subtract the lower one minus greater. मतलब अपन क्या करेंगे कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो which one is greater? This obviously the successor is greater because it is the next number and the predecessor is the previous number, and so the successor is greater. तो क्या करेंगे अपन, successor में से we will subtract predecessor, then what will you find? It's 2. ठीक है, सब ये सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, 2 आएगा इसका आंसर. तो ये अपन ने कर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने कर दिया है. इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन को एक नंबर दिया हुआ था और अपन को पूछा था कि इसके सक्सेसर और प्रीसीजर का पहले अपन को सम निकालना है, फिर डिफरेंस निकालना है. तो पहले तो अपन ने इस नंबर के सक्सेसर फाइंड किया, फिर प्रीसीजर फाइंड किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, तो अपने पास आंसर आ गया, सम डिफरेंस सब आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी 10th question. We will first read the 10th question. It's write 3 consecutive whole numbers starting from 599. I told you that when we read it with the consecutive whole number, it means the next numbers which is coming to the given number. Here the given number is 599. So 3 consecutive number means 3 next number of 599. Means we have to add 1 in 599. That what we have found we have to add 1 in that. मतलब अपन को क्या करना है कि 599 दिया हुआ है तो अपन को 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स पूछे हैं, मतलब अपन को क्या करना है 599 में 1 ऐड करना है, फिर 59 जो आया अपने पास उसमें अपन को 1 ऐड करना है, फिर जो आया उसमें अपन को ऐड करना है. ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं. तो अपन को क्या करना है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं. तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब अपन को 3 सक्सेसर फाइंड करने हैं. वी हैव टू फाइंड 3 सक्सेसर ऑफ 599. फर्स्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर, consecutive whole number. It's nothing to do with whole number and natural number. They are same because every natural number is a whole number. Equal to 599 plus 1 which is 600. We all know that 599 में 1 जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा. Second consecutive number, सेकेंड कंसेक्यूटिव होल नंबर 600 में 1 जोड़ देंगे, 600 में 1 ऐड कर देंगे, 601. अब तीसरे के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे जो आया उसमें. थर्ड कंसेक्यूटिव होल नंबर 601 plus 1 which is 602. And we can see that we have 3 numbers here and it is the 3 consecutive whole numbers. I know. अब उनको पूछा था कि अपन को 3 consecutive whole numbers फाइंड करने, तो अपन ने क्या किया, पहले 599 में 1 जोड़ा, फिर जो आया उसमें 1 जोड़ा. मतलब अपन को अगर दिख गया क्वेश्चन में कि consecutive whole number फाइंड करने, मतलब वो जो अपने को नंबर दिया हुआ है उसकी अगली संख्या, मतलब अगली जो नंबर्स है वो फाइंड करने हैं. कुछ भी दे दो, 2 दे दिया मेरे को तो भैया आपको तो 2 के consecutive नंबर निकालने हैं. तो जैसे 5 निकालना है तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो फर्स्ट 3 हो गया, फिर सेकंड 4 तो 4 हो गया, तो 5 निकालना है तो क्या हो गया 3 4 5 6 7 आर द 5 नंबर्स विच इज कंसेक्यूटिव ऑफ होल नंबर्स ऑफ 2. नेक्स्ट वी विल डन विथ 11th questions. Fill in the blanks. It's very easy question in understanding. Fill in the blanks. First question is x plus 0 इक्वल टू एक्स. ये तो अपन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, x प्लस 0 इक्वल टू एक्स होता है. ठीक है, अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, एक बार x को कंसीडर मत करो.
अब बच्चों को क्या होता है, मतलब दिखता है कि एक्स दिख गया, एक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, डर जाते हैं बच्चे। पर अपन एक बार सोचें कि किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में अगर अपन 0 ऐड कर दें, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना कि किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में अपन अगर 0 ऐड कर दें तो क्या होता है। 2 में 0 ऐड करो क्या होता है, 2 आ जाता है। 4 में 0 ऐड करो क्या होता है, 4 आ जाता है। 100 में 0 ऐड करो क्या होता है, 100 आ जाता है। इनफैक्ट 5000 में 0 ऐड करो 5000 आ जाता है। मतलब अपन किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करें, किसी भी मतलब कुछ किसी में भी अपन अगर 0 ऐड करें तो वो वापस आ जाता है, 0 का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें अपन ने क्या किया, x में 0 ऐड किया तो x आ गया, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन इज, ये तो एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, मतलब इट इज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्पल that you have to do the next 2 questions according to this. Second question is x minus 0 equal to what? वापस उसी फॉर्मेट में सोचना है अपन को कि अपन किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो व्हाट वी विल फाइंड, कि अपन किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करें क्या मिलेगा अपन को। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 2 मिलेगा, 20 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 20 मिलेगा, 36 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 36 मिलेगा। इनफैक्ट आपको जो भी जिसमें से भी 0 सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करो, वो ही नंबर आपको वापस मिलेगा। इसके बारे में खुद सोचना है, एक बार खुद दिमाग लगा के सोचना। पर अपने पास क्या होगा कि अपन को मतलब किसी में से भी अपन 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को वही नंबर वापस मिलेगा। तो x माइनस 0 इज व्हाट, x, क्योंकि अपन ने x में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो अपन को वही मिलेगा, मतलब x ही मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन इज x इंटू 0, x into 0, they are not same, it is x and it is the sign of into। तो अब अपन वैसे ही सोचो, अगर मतलब किसी भी डिजिट में अपन, किसी भी नंबर में अपन 0 को इंटू करें तो क्या होता है, 0 को इंटू करें क्या मिलता है, 2 में 0 इंटू करो 0, 5 में 0 इंटू करो 0, 50 में 0 इंटू करो 0, 100 में 0 इंटू करो 0। मतलब किसी में भी 0 इंटू कर दो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में ले इन चीजों को। मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको बताए कि अगर अपन किसी भी नंबर में 0 इंटू कर देंगे तो अपन को 0 ही मिलता है। तो x में भी 0 इंटू करोगे तो x कौन सा ऊपर से टपका हुआ है, ये भी सबका भाई है, तो इसको भी 0 देना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। I hope that everyone is understood with the thing. It is a universal truth, nothing else. We will think it with the general math we have do in the previous classes. Next क्या है, write true or false for each of the following statement. ट्रू और फॉल्स बताने हैं, मतलब जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें अपन को बताना है कि ये ट्रू लिखा हुआ है या फॉल्स लिखा हुआ है। तो 4 है इसमें, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेटमेंट है। ये 4 चीजें लिखी हुई है, इसमें अपन को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या कहना चाहता है कि जो अपन काउंटिंग नंबर्स होते हैं, व्हाट इज काउंटिंग नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स होते हैं भाई जिनको अपन गिन रहे हैं। गिनने वाले नंबर कौन से होते हैं? अपन अगर गिनते हैं तो कहां से काउंटिंग कहां से करते हैं? आपको कोई पूछे मान लो कि काउंटिंग सुनाओ, व्हाट इज काउंटिंग? 1 आप कहां से स्टार्ट कर दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 सुनाते जाओ जितना सुनाना चाहते हो। तो इसमें क्या लिखा है? ऑल काउंटिंग आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 से इन्फिनाइट तक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 देन जितना भी आप जा सकते हो, जितना भी आप काउंट कर सकते हो, वहां तक क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो और काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी 1 2 3 4 5 6 7 8 से इन्फिनाइट तक काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर भी वही होते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। यस ऑफ कोर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि जो काउंटिंग अपन करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। कोई भी काउंटिंग नंबर ले, 1 ले, नेचुरल नंबर है, 2 ले, नेचुरल नंबर है। कहां तक जाओगे? 500 तक बोल रहे, 500 क्या नेचुरल नंबर है? सब नेचुरल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। वी विल राइट ट्रू। क्वेश्चन लिखना है सब बच्चों को, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ट्रू लिखना है, ऐसे सल्टाना नहीं है सस्ते में। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखो अब इसको ध्यान से सोचना, एक बार दिमाग पे जोर डाल के। एवरी होल नंबर, जो मतलब अपन को क्या पूछ रहा है कि जो होल नंबर्स होते हैं इज ए नेचुरल नंबर। और सारे नेचुरल नंबर होते हैं क्या? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब जो होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं क्या? तो यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट पढ़ा था,
एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्या पूछ रहा है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देन द स्टेटमेंट इज व्हाट? इट इज फॉल्स। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? देखो इसमें जीरो का खेल होता है सब। अगर होल नंबर और नेचुरल नंबर में कंपेयर करते हैं तो जीरो आ जाता है बीच में हीरो बन के तो मतलब जीरो का क्या होता है कि होल नंबर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब अपन को पूछा है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, होल नंबर्स में तो जीरो भी आता है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो एवरी होल नंबर मतलब हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि जीरो नहीं होता। सक्सेसर ऑफ 199 इज 198, बिल्कुल गलत है। ये तो सब बच्चों को दिख रहा है गलत है। मतलब 199 का जो सक्सेसर होता है वो 198 होता है क्या? नहीं, तो 198 तो प्रीसीजर होगा। ये तो प्रीवियस नंबर है 199 का, तो ये तो प्रीसीजर होगा। 199 का सक्सेसर तो 200 होगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फोर्थ है द लार्जेस्ट रूल नंबर इज 100, द लार्जेस्ट रूल नंबर इज 100। ये तो पूछने वाली बात नहीं है। क्या होता है? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर इज व्हाट? जो जीरो से इन्फिनिटी तक चलते हैं, 0 1 2, फिर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ। तो मैंने आपको कहा था कि जो होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं ना, उनमें लार्जेस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, कुछ नहीं होता, लार्जेस्ट कोई नहीं है बड़ा। जहां तक जाते जाओगे ना वहां तक काउंटिंग है, वहां तक मतलब है ना लार्जेस्ट होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, कोई लिमिट नहीं है इनकी। इसलिए 100 तो मजाक है, समझो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द टू नंबर्स लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। क्या पूछा है कि अपन को दो मतलब ये दो क्वेश्चन है, इनमें दो नंबर दिए हुए हैं, तो इन दो नंबर्स में से अपन को ये बताना है कि जो अपन नंबर लाइन बनाएंगे उन नंबर लाइन पे लेफ्ट में कौन रहेगा इन दोनों में से। जो नंबर लाइन है उसमें लेफ्ट में कौन रहेगा इन दोनों में से। इसमें तो नंबर लाइन देखो एक ही बना दो, ये नंबर लाइन है, समझाने के लिए बता रही हूँ, ये नंबर लाइन है। तो इसमें लेफ्ट में कौन रहेगा? इधर कौन रहेगा? जीरो से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, इतनी बनाएंगे, समझना है अपन को, बाकी अपन कर देंगे नंबर लाइन बिना। लेफ्ट में कौन रहेगा? अब मेरे को आप बताओ कि ये जो 3 है और ये 5 है, इन दोनों में अपन अगर कंपेयर करना चाहें कि लेफ्ट में कौन रहेगा, मेरे को कोई पूछे कि नंबर लाइन में 3 और 5 में लेफ्ट में कौन रहेगा, तो ऑफकोर्स जो लेफ्ट कौन सा है कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा, लेफ्ट ही होता है राइट ही होता है। जो मतलब राइट हैंड साइड है ना, जिस हाथ से लिखते हो, हाँ हो सकता है कई बच्चे उल्टे हाथ से भी लिखते होंगे, पर सीधा हाथ जिसको बोलते हैं ना अपन, वो तो है राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड इज व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? ये वाली जिससे अपन नहीं लिखते हैं, जिसको उल्टा हाथ बोलते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, राइट लेफ्ट हो गया। तो अब मेरे को कोई पूछे कि 3 और 5 में से लेफ्ट में कौन है, जो छोटा है वो लेफ्ट में है, जो छोटा है वो लेफ्ट में है, जो बड़ा है वो राइट में है। इसको अपन याद भी कर सकते हैं, बताए कैसे? कि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा सही कहते हैं। राइट यानी क्या होता है? इंग्लिश में सोचो, राइट यानी क्या होता है? सही, राइट हैंड सही होता है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा सही कहते हैं, छोटे कई बार गलत नहीं होता वैसे लेफ्ट का इंग्लिश में, फिर भी अपन एक बार याद करने के लिए बोल सकते हैं भाई बड़े लोग हमेशा सही कहते हैं, बड़े लोग हमेशा सही कहते हैं। तो जो बड़े होते हैं वो राइट में रहते हैं और छोटे होते हैं वो लेफ्ट में रहते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अब इसमें से अपन को देखना है कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। अब इतना नंबर लाइन पे अपन बना ही नहीं सकते, कहाँ 5 करोड़, कहाँ 10 मिलियन, कितनी लंबी नंबर लाइन बनाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 5 करोड़ एंड 10 मिलियन आई थिंक। तो पहले तो इनको है ना सेम चेंज करो, ये तो उसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल वाली सिस्टम में, और ये वो अपने हिंदू अरेबिक में लिखा हुआ है, तो पहले तो इनको सेम में करना पड़ेगा। ये तो 5 करोड़ ही रहने दो। 10 मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। सबको पता है 1 मिलियन 10 लाख होता है, और नहीं पता है ना तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सबको याद होना चाहिए। तो एवरीवन शुड बी रिमेम्बर्ड विद दैट कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख होता है तो 10 मिलियन कितना हो गया? 1 मिलियन 10 लाख होता है तो 10 मिलियन 100 लाख हो गया। 100 लाख क्या होता है? 1 करोड़। 100 लाख इज व्हाट? 1 करोड़। तो अब मेरे को ये बताओ, अपन को क्या पूछा है? लेफ्ट में कौन होगा?
इन दोनों में से लेफ्ट में कौन होगा? अब मैंने बताया था राइट में के कौन होगा जो बड़ा होगा, लेफ्ट में कौन होगा जो छोटा होगा। लेफ्ट में अब लेफ्ट का पूछा है तो छोटा कौन है? 5 करोड़ छोटा है, 1 करोड़ छोटा है? 1 करोड़ छोटा है, तो 1 करोड़ विल बी इन लेफ्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4,42,441 ये एंड 15,63,342 15,63,342 में से लेफ्ट में कौन होगा? एक तो 4 लाख, एक 15 लाख। तो 4 लाख बड़ा होगा या 15 लाख बड़ा होगा? 15 लाख बड़ा होगा, 4 लाख छोटा होगा। लेफ्ट में कौन रहता है? जो छोटा होता है। तो 4,42,441 विल बी इन लेफ्ट। सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अपन को याद क्या रखना है? बड़े लोग सही बोलते हैं, बस यही ट्रिक है अपनी, बड़े लोग सही बोलते हैं। तो अपन ने क्या किया आज? अपन ने आज 13 क्वेश्चन तक कर दिए। 9th क्वेश्चन किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, 13 किया, यहां तक अपने कर दिया। अब अपन अगले वीडियो में यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और फिर ये ऑपरेशन सॉल्व, होल नंबर सब पढ़ लेंगे फिर, ठीक है? टेंशन नहीं लेने की। तो आज का वीडियो ही खत्म होता है। आई होप दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी डन विद द होमवर्क व्हेन आई चेक द कॉपीज ऑन सैटरडे। सो फॉर टुडे गुड बाय, टेक केयर।